ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ سارے رمضان میں ہی بھرپور عبادت کرتے، لیکن آخری عشرے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کا ایک ماحول پیدا کریں، خود بھی، اہل خانوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور باقی لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ اور جب کوئی کام مل جل کر کیا جاتا ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ اس آخری عشرے میں خصوصی عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا بھی جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، لیکن اگر کسی سال وہ سفر پر ہوتے تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے عبادت کی غرض سے مسجد میں جم کر بیٹھنا یا مسجد میں رہنا۔ اعتکاف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور گناہوں کے مواقع سے بچا کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بہترین کام کرنے کے لیے یکسوئی درکار ہوتی، کنسنٹریشن درکار ہوتی۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں تو عموماً یکسوئی میسر نہیں آتی۔ تنہائی میں بھی بعض اوقات انسان اپنے باقی کاموں کے سلسلے میں سٹریس میں رہتا ہے۔ بعض حالات میں تو انسان آرام کرتے ہوئے بھی آرام نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک کے بعد ایک مصروفیت، ایک کے بعد ایک دنیا کا کام اس کے سامنے رہتا ہے۔ اس طرح سال کے ایک مہینے میں جہاں اس کی روحانیت پرورش پاتی ہے، وہاں اس کو اعتکاف کے ذریعے عبادت کا مزید موقع مل جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو گرو کرنے کے لیے مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا ایک پودا اگر آپ کسی ایسی زمین پر لگا دیں جو اس کے موافق نہیں، تو خواہ کتنا بھی بہترین بیج آپ وہاں ڈالیں، کتنا بھی اچھا پانی ہو وہاں کا، کتنی بھی اچھی سوائل ہو، لیکن وہ وہاں اس طرح کے پھل نہیں لائے گا جو وہ اپنے اصل جگہ پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ماحول اس کے مخالف ہے، اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کو جب کوئی ماحول اپنے مزاج کے مطابق ملتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اور زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ انسان اگر اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اعتکاف اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہر سال اعتکاف نہ بھی کر سکیں تو کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سارعوا، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں دوڑنا بھی چاہیے اور جلدی بھی کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر نہ جائے، اور پھر موقع ملنے پر وہ سستی دکھائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی خیر و بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
अमूमन हम दुनिया के मामले में तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ़ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत को बेहतरीन तरीके पर करें। यहाँ ये बात भी याद रहे कि हमारे दीन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं तर्के दुनिया को। एतिकाफ में अगरचे तर्के दुनिया ही किया जाता है, दुनिया के सारे काम काज छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो इंसान किसी शरई उज़्र के साथ एतिकाफ की जगह से बाहर भी जा सकता है। अगर एक शख्स इबादत में लगा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बंदों के हाल से बिल्कुल बेखबर हो जाए और उसे उनकी कोई भी परवाह ना रहे या उनकी तकलीफ में वो उनकी मदद ना करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे की मदद करते हैं जो किसी की मदद में लगा रहता है। अल्लाह ताला का वादा है कि क़यामत के दिन वो लोगों की, ऐसे बंदों की तकलीफ़ों को दूर कर देगा, क़यामत की तकलीफ़ों में से जो दुनिया में बंदों की तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इसलिए इंसान जब इबादत करे तो खूबसूरत तरीके से करे और अगर बंदों की खिदमत करे तो वो भी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करे, क्योंकि हमारा इम्तिहान ही दरअसल ये है कि हम इस दुनिया में करते क्या हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे, तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का इम्तिहान? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, खूबसूरत अमल किसके हैं। गोया हम सब से ये देखा जा रहा है कि हमारे कामों का दर्जा क्या है, हम किस दर्जे पे काम करते हैं। किसी भी काम को जो अच्छा हो, उसका अच्छा होना जहाँ शर्त है, वहाँ उसका तरीका भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि अच्छे काम की जो डेफिनेशन बताई गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक वही काम अच्छा है जिसमें नीयत भी अच्छी हो और तरीका भी अच्छा हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। क्योंकि अगर कोई काम बजाते खुद अच्छा है लेकिन अप्रोच रॉन्ग है, गलत तरीके पे किया जा रहा है, तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर काम अच्छा नहीं लेकिन तरीका अच्छा है तो वो भी ठीक नहीं। दोनों चीज़ों का दुरुस्त होना नहायत ज़रूरी है और हिकमत इसी चीज़ का नाम है कि इंसान राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, सही काम को सही तरीके पर करे, उसको उसका हक देते हुए करे। इबादत करे तो उसको उसका हक दे, किसी की खिदमत करे तो उसको उसका हक दे। और हिकमत तो वो नेमत है कि अल्लाह जिसे चाहे अता करे। कुरान मजीद में आता है, युतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमत अता करता है जिसको वो चाहता है। वो मैं युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत मिल गई उसे बहुत बड़ी भलाई मिल गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कामों को बेहतरीन तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए और इन गुजरते दिनों में भरपूर नेकियां करने की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत और ज़िक्र के साथ हमारे दिन और रातें आबाद हो जाएं और अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को कबूलियत भी अता फरमाए। आखिरी अशरे की एक और ख़ास खुसूसियत ये है कि उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, यानी उस रात का अमल 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतरीन अमल है। यानी एक शख्स अगर 1000 महीने इबादत करता रहे और दूसरी तरफ उसको अगर ये रात नसीब हो जाए तो उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने, क्योंकि इस एक रात में वो जो कुछ करेगा वो उसकी उस सारी इबादत से ज़्यादा अफसल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद सबसे अजीम हस्ती की तरफ से आया,
यानी अल्लाह सुब्हानो व तआला का कलाम सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, सबसे बेहतरीन महीने रमज़ान में नाजिल किया गया, सबसे बेहतरीन रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया कि उस एक रात का अमल 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और मज़ीद ये कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, उसमें फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका उतरते हैं और रूह यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात सरासर सलामती की रात है यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए। इतनी खूबसूरत रात, इतनी बेहतरीन रात, इतनी खैर व बरकत और भलाइयों से मामूर रात, क्या हम उसका इंतजार नहीं करेंगे? क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए मजीद तलब और तड़प बढ़ाएंगे नहीं? खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया और बदकिस्मत है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। इसलिए हमें आज से ही इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे की सब रातों में इबादत करेंगे और पिछले 2 अशरों की निस्बत ज्यादा करेंगे ताकि हम इस रात में नेक अमल करके अपने नामा अमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की तलाश में अगर पूरा अशरा भी इबादत करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि नफा ही नफा है, क्योंकि ये रात जो खैर व बरकत की रात है, जिसको मिल गई उसकी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। लेकिन ये खुशकिस्मती उसके लिए है जो उसकी तलब रखे, उसके लिए भाग दौड़ करे, उसके इंतजार में रहे, उसका शौक रखे। ये रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत की। फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन्नल मलाइकता तिलकल लैलति फिल अर्दि अक्सर मिन अददिल हिसा, बिलाशुबा इस रात को जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज्यादा होती है। और फिर फरिश्ते जब उतरते हैं तो एक खास किस्म का माहौल पैदा हो जाता है, हर तरफ नेकी का दौर दौरा होता है, एक खास रूह होती है इस रात में। इसलिए हम सबको इससे भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। हजरत अनस से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़ा अश-शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूमुन। कि लोगों, ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है, यानी हकीकी मानों में बदनसीब वो है जो इस रात की इबादत से महरूम रहे, इस रात की खैर से महरूम रहे। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की कोई भी रात हो सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ताक रातों में उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी यानी लैलतुल क़द्री फ़इन दअफ़ अहदुकुम औ अजज़ा फला युग़लबन्ना अला सबइल बवाक़ी। सही मुस्लिम की इस रिवायत का माना है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजिज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती न करे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और शॉर्ट लिस्ट कर दिया, पहले 10 रातों का बताया, फिर आखिरी 7 रातों की तरफ तवज्जो दिलाई। इस रात का क़याम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इससे ये बात भी पता चलती है कि इस रात की सबसे अफजल नेकी क़याम करना है, यानी अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ना, यानी नमाज की हालत में, या सुनना है। इसी तरह इस रात में शोर हंगामे, लड़ाई झगड़े, हुजूल और लाहू गुफ्तगू से भी परहेज करना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि जब लोग मसाजिद में इकट्ठे होते हैं या कुछ घरों में इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौर पर क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात थकावट होने की सूरत में चाय का दौर चलता है या फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि वही दुआ की कबूलियत का वक्त हो। इसलिए पूरी रात में इंसान अपने आप पर खूब चेक रखे, नजर रखे कि वो इबादत के सिवा किसी और चीज की तरफ ध्यान न दे। अगर कोई और कर रहा है तो उसको भी समझाए।
इस सिलसिले में एक हदीस है, उबादा बिन सामित से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कद्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कद्र बता दूं, लेकिन फलां और फलां ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस हदीस से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि मुसलमानों का बाहम लड़ाई झगड़ा फितना फसाद उनको बहुत सी खैर से महरूम कर देता है। एक और हदीस के मुताबिक फसाद और बाहमी ताल्लुकात की खराबी दीन को मूंड देने वाली है, यानी दीन का सफाया कर देती है। वहाँ कोई ईमान और तकवा और खैर भलाई बाकी नहीं रहती जहाँ लोगों के दरमियान बाहम ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। और यहाँ हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिकली ये बताने के लिए आए कि कौन सी रात लैलतुल कद्र होगी ताकि लोग उसमें पूरी तरह इबादत कर सकें, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से वो इल्म आपसे उठा लिया गया। लेकिन आपने ये फरमाया कि इसी में भलाई होगी। इससे हमें एक और बात भी पता चलती, और वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा दर्जे की मुस्बत सोच रखते थे। वो हर उस मौके पर जहाँ कोई शख्स परेशान होकर काम छोड़ सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है, आप उस मौके पर भी हमेशा यही बताते कि इसमें भी भलाई है, इसमें भी खैर है। और हम अगर गौर करें तो खैर नजर भी आती है। वो ये कि अगर हमें ये पता होता कि फला एक रात लैलतुल कद्र है, मसलन बाज लोग जैसे कहते हैं 27वीं की रात या कोई और रात, तो फिर हम सिर्फ इबादत उसी रात में करते। अब चूंकि पता नहीं कि कौन सी रात है, तो उस एक रात को तलाश करने के लिए हम और भी बहुत सी रातों में इबादत कर लेते हैं, जो यकीनी तौर पर सवाब और अजर का काम है। लैलतुल कद्र अगरचे ये नहीं पता चलता कि कौन सी रात है, लेकिन उसकी कुछ अलामात हमें बताई गई हैं। वो अलामात क्या है? अहादीस की रोशनी में देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती। वो ऐसे होता है जैसे थाली, यानी सूरज नजर तो आता है लेकिन उसकी शुआएं नहीं नजर आती। इन सूरज का रंग एक तरह से मुख्तलिफ होता है। एक और रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब कद्र का जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम में से कौन उसे याद रखता है? इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा, यानी उसको भी आपने थाल से तशबीह दी, लेकिन किनारा इसलिए कि आखिरी रातों में चांद पूरा नहीं रहता, एक किनारे की तरह रह जाता है। इसी तरह इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र आसान और मोतदिल रात है जिसमें न गर्मी होती है और न सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मधम होती है, यानी सूरज की एक निशानी बताई गई, लेकिन जाहिर है कि वो तो जब रात गुजर जाती है फिर ही नजर आता है। इसलिए इस पर नहीं रहना चाहिए कि फुला रात थी या फुला रात थी, तवज्जो इस पर रहनी चाहिए कि हमें हर रात से किस तरह फायदा उठाना है। एक और रिवायत में आता है, हजरत ज़िर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने उबई इब्न काब को ये फरमाते हुए सुना। उनसे कहा गया कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करे वो लैलतुल कद्र को पहुंच गया। हजरत उबई फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो शब कद्र रमजान में है। वो यकीन के साथ कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम बेशक मैं जानता हूँ वो कौन सी रात है। ये वही रात है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म दिया। उस रात की सुबह 27 तारीख थी और उसकी अलामत ये थी कि सूरज तुलू हुआ तो उसकी सफेदी में शुआ न थी। और ये हो सकता है कि उस साल 27वीं रात हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 27वीं रात ही शब कद्र हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कद्र पालूं तो उसमें क्या कहूँ, यानी कौन सी खास दुआ मांगू? आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। इससे ये पता चलता है कि उस रात भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, माफी और दरगुजर की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है। अगर ख़वातीन नमाज न पढ़ सके तो जिक्र अज़कार कर सकती हैं, तस्बीहात कर सकती हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं हम सब, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से खुश होते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب مانگنی چاہیے۔ یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی، لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقوی کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
पाकीज़ा कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि किस तरह जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज यानी उस पर ईमान बंदे के दिल में उतरता है तो फिर वो इस तरह परवान चढ़ता है जैसे एक शजरा तय्यबा उम्दा दरख्त परवान चढ़ता है। और वो दरख्त कैसा होता है? असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ मजबूत होती है। यानी जब ईमान मजबूत होता है तो नतीजा क्या निकलता? फरउहा फिस समा, कि उसकी शाखें आसमान तक जाती हैं, यानी उसके आमाल ऊपर उठते हैं। तुअती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा, फिर वो अपने रब के इज़्न से हर आन फल देता है। यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर ईमान होता है और ईमान पर उसको इस्तिकामत नसीब होती है तो फिर वो दूसरों के लिए भी एक मुफीद इंसान बन जाता है। वो हर दम फायदा पहुंचाने वाला बन जाता है। जैसे एक दरख्त अगर उस पर फलों का मौसम ना भी हो तो उससे ऑक्सीजन बनती रहती है, साया बनता है और दीगर भी बहुत से फवायद हासिल होते हैं। इसी तरह बंदा मोमिन के अंदर जब ईमान आता है और नेकी और तकवा के जरिए वो ईमान सेंचा जाता है तो ये चीज़ इंसान के नेक अमाल में इजाफे का जरिया बनती है। हमें उन कामों में हमेशा सबकत करनी चाहिए कि जो ईमान को बढ़ाने वाले हैं और उन कामों से बचना चाहिए कि जो ईमान में खसारे या नुकसान का जरिया बनते हैं, जो इंसान के दिल को मैला करते हैं और जिससे इंसान नेकी के कामों में फिर पीछे होने लगता है। वो कौन से काम हैं? उनमें से एक काम तो ये है कि इंसान गलत कंपनी इख्तियार ना करे, यानी ऐसे लोगों की पैरवी ना करे जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो, जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुति' मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फुरुता। वला तुति', और तुम इताअत न करो, बात न मानो। किसकी? मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया हो। वत्तबअ हवाहु, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हो। व कान अम्रुहु फुरुता, और उसके सारे काम बिखरे हुए हो, यानी गैर मुनज़्ज़म जिंदगी हो और किसी चीज का सर पाँव ना हो। लिहाजा इंसान अगर अपने ईमान में इजाफा करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों की कंपनी में बैठे, ना कि उनके पास जो अल्लाह से गाफिल हो। क्योंकि इंसान जब ऐसे लोगों में बैठता है तो वैसा ही हो जाता है या होने लगता है, क्योंकि इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। इसी तरह जब इंसान किसी कंपनी में बैठता है तो उमूमन वहाँ मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनता है, उन बातों से भी इंसान मुतासिर होता है। वो बातें उसके ऊपर किसी न किसी दर्जे में असर करती हैं, या उसी वक्त या थोड़ी देर के बाद या बाद में भी वो चीज़ें याद आती रहती हैं। अब अगर इंसान रोज़ा रख कर भी झूठ बोल रहा है तो ऐसे रोज़ा रखने का भी कुछ फ़ायदा नहीं, उससे ईमान में इजाफा नहीं हो सकता। खाली भूखे प्यासे रहने से ईमान नहीं बढ़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई हाजत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि इंसान भूखा प्यासा रहे और बाकी जो उसका जी चाहे करे। गोया रोज़ा बुराई से बचने का नाम है, सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं। इसी तरह एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर। कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोज़े से सिवाय भूख प्यास के कुछ भी नहीं मिलता, यानी कोई अजर सवाब नहीं मिलता, उनके अंदर कोई तकवा नहीं आता, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, उनकी रूहानियत में कोई ताकत नहीं आती। वो जैसे पहले होते हैं वैसे ही रमज़ान के बाद होते हैं, क्योंकि उन्होंने खाना पीना तो छोड़ा, वो काम नहीं छोड़े जिससे ईमान में कमी हो जाती है। इसलिए रोज़े के साथ साथ इंसान को अपनी ज़बान और अपने बाकी अमाल का भी मुहासबा करते रहना चाहिए। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि कितने ही रातों को जागने वाले ऐसे हैं, क़याम करने वाले, जो वैसे इबादत में खड़े रहते हैं लेकिन उनको रात जागने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, कोई अजर सवाब हासिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वो या तो दिखावे के लिए करते हैं, या फिर उनकी नमाजों में कोई खुशू खुजू नहीं होता, या वो एक
लगे बंधे अंदाज में बस एक रिचुअल के तौर पर उस काम को कर रहे होते हैं, उसमें कोई रूह नहीं होती। तो जैसे रूह के बगैर कोई जिस्म मुर्दा होता है, ऐसे ही जब इबादत के अंदर रूह नहीं होती, इबादत के अंदर अच्छी नीयत नहीं होती, शौक और जज्बा नहीं होता, वो अल्लाह के लिए नहीं की जाती, वो रियाकारी और दिखावे से पाक नहीं होती, तो वो इबादत भी ज्यादा फायदा नहीं देती। इसलिए हमें रमजान में जो भी काम करें उसमें अपनी नीयतों का भी खूब जायजा लेते रहें। इसी तरह जो चीज़ ईमान में कमी करती है वो गीबत, चुगलखोरी और इस किस्म के ज़बान के दीगर गुनाह हैं। खुसूसन रोज़े में इनसे परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रोज़े को बहुत नुकसान देने वाले हैं। कुरान मजीद में गीबत को, दूसरों के पीठ पीछे उनकी बातें करने को, मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहेगा, कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम उसको सख्त नापसंद करोगे। लेकिन जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने गीबत की और उसको ये एहसास हुआ कि उसने मुर्दा का गोश्त खाया। अगर इंसान ये तसव्वुर भी कर ले गीबत करते हुए तो वो फौरन बाज आ जाए, क्योंकि मुर्दा हो या जिंदा किसी इंसान का गोश्त खाना इंसानियत से निहायत गिरी हुई बात है। रमज़ान के रोज़े जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है, हमें मदद देते हैं इस बात में कि हम अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करें। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि इंसान को अगर किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई नाराज़गी है या किसी की कोई बात पसंद नहीं, तो बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे या किसी ऐसे इंसान के ज़रिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे कि जिससे उसको भी फ़ायदा हो और ख़ुद भी अपने नुकसान से इंसान बच जाए। जब इंसान गैर ज़रूरी बातों में मसरूफ़ होता है, इस किस्म के हराम कामों में मशगूल हो जाता है, तो उसका असल फोकस जिस चीज़ पर होना चाहिए उससे हट जाता है। वो अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, वो करने के काम कर नहीं पाता, वो अजर सवाब से महरूम रह जाता है, उसके ईमान में कमी हो जाती। जब ईमान कमज़ोर पड़ता है तो अमल भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान रमज़ान में अपने आमाल का एहतिसाब करता रहे। जहाँ तक ईमान बढ़ाने वाले काम हैं तो उसमें फ़राइज़ के साथ नवाफिल की कसरत, ज़िक्र की मजलिस में शिरकत, जैसे गाफिलों की मजलिस में शिरकत ईमान कमज़ोर करती है, उसके बरक्स ज़िक्र की मजालिस ईमान में इजाफे का ज़रिया बनती हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने पास वालों में उनका जिक्र करता है। यानी वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। और सच्चे मोमिन तो वो होते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती, ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने लगते हैं, भरोसा करते हैं। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक मोमिन से जब मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत की जाती है। यानी अल मुमिनु यअलफु व युअलफ, मोमिन उल्फत रखता भी है और उससे भी उल्फत की जाती है। यानी किसी के बारे में अच्छी सोच रखना, किसी से अच्छा बर्ताव करना, ये भी इंसान के अंदर खैर व भलाई में इजाफे का जरिया बनता है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मोमिन का आईना है, मोमिन का भाई है, उसके सामान की हिफाजत करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसका भी दिफा करता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। और अगर इंसान शैतान के पीछे लग जाए तो फिर नेकी के कामों से दूर होता चला जाता है। शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो अपने रब पर ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि हम नेकी के कामों में आगे बढ़ें और बुराइयों में पीछे रहें। जैसा कि रमज़ान की हर रात को एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़िल खैर अक़बिल व या बाग़िश शर्र अक़सिर, ए नेकियों के तलबगार आगे बढ़ो और ए बुराइयों के चाहने वाले रुक जाओ, अब तो बाज आ जाओ। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है,
لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں غفلت برتے تو وہ زندگی اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف 8 گھنٹے سوتے ہوں تو 60 سال کی عمر پانے والا انسان اپنی زندگی کا تیسرا حصہ یعنی 20 سال گویا سو کر گزار دیتا ہے۔ کام کے لیے اس کے پاس 40 سال بچے، اور اگر 40 سالوں میں بھی وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتا اور کرنے کے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی ادھر ادھر کے لہو و لعب میں گزار دیتا ہے تو آخر کار وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اوقات یا زندگی یہ ویسے بھی بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ اوقات دوسروں کے نسبت اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیا جانے والا عمل اجر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ایک دن کر کے رمضان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ عموماً جب کام شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی تو اس میں انسان کے موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ انسان کام شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ کام ایک عادت بننے لگتا ہے، ایک روٹین بننے لگتا ہے تو عموماً اس میں کچھ سستی سی آنے لگتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے شروع میں ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے عشرے میں عموماً چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے میں ہمیں پھر اپنے آپ کو ایک بار یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات نہایت قیمتی ہیں اور انہیں ہمیں بغیر کچھ کیے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ انسان اگر رمضان کے شروع میں ہی پلاننگ کر لے تو رمضان بہترین طریقے پر گزر سکتا ہے، لیکن اگر ابھی تک ہم نے پلاننگ نہیں کی تو چاہیے کہ ہم ان باقی دنوں کو بہترین پلانڈ انداز میں ایک منظم طریقے پر گزاریں اور اس میں اپنے کھانے پینے، آرام کے علاوہ باقی وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا کسی بھی قیمت پر۔ دنیا میں کسی بھی اور چیز کا نقصان اس کا کچھ نہ کچھ نعم البدل ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پیسے کھو جائیں تو دوبارہ بھی اس کو مل سکتے ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو انسان اور خرید سکتا ہے، کپڑا پھٹ جائے تو نیا لے لیتا ہے، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، چاہے وہ انسان اپنی عمر بھر کی پونجی اس پر لگا دے، اس کا کوئی میک اپ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح۔ اگر انسان سوچے کہ میں اس وقت کچھ نہیں کرتا، بعد میں کچھ کر لوں گا، تو بعد کے اوقات تو کسی اور کام کے لیے ہیں۔ آج اس وقت جو کام کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ آج ہی کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس مہینے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہے، بلکہ اس احتیاط سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنی باقی زندگی کو بھی کس طرح منظم کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے یعنی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور انسان کی بات کر رہے ہیں کہ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی لمحے دنیا میں آتے ہی اس کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور ہم عام طور پر خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اب 1 دن کا ہو گیا ہے، 1 ہفتے کا ہو گیا ہے، 1 مہینے کا ہو گیا ہے، سال کا ہو گیا ہے، اور پھر خوشی سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہر آنے والا دن اس کی زندگی کو گھٹا رہا ہے۔ جو اس کے سال ہیں زندگی کے، ان میں سے ایک ایک دن کر کے، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یوں انسان اپنی موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو ایک سرمایہ سے تعبیر کریں، مثلاً ہر دن میں 24 گھنٹے ہمیں جو ملتے ہیں، ہر گھنٹے کی اگر ہم ایک قیمت لگا لیں، دنیا کی ویسے کوئی بھی چیز قیمت ہو نہیں سکتی اس وقت کی، لیکن اندازاً مثلاً اگر ہم 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے لگا لیں تو ہر گھنٹہ ختم ہونے پر 1 لاکھ روپیہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے بیلنس میں 0 رہ جاتا ہے۔ اگلے دن پھر ایک نیا دن ملتا ہے، اور پھر اسی طرح اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو آخر میں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچتا۔ اس وقت کو، اس سرمایہ کو استعمال کرنے کی بہترین شکل یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین، ہاں اس خسارے سے نکل سکتے ہیں کون؟
मगर वो लोग आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती और उन्होंने अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक सिर्फ खुद ही अच्छे काम नहीं किए, एक दूसरे को भी अच्छे कामों की तलकीन की, हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, क्योंकि जिंदगी का ये सफर एक मुश्किल सफर है और इसमें इंसान बारहा हिम्मत हार बैठता है। तो जरूरी है कि हम खुद भी अच्छे काम करें, दूसरों को भी तलकीन करें, और अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहें। और ये कि खास तौर पर रमज़ान के महीने में हमें अपने औकात को और भी ज़्यादा समझदारी के साथ गुजारना है ताकि हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग आमतौर पर धोखे में हैं, और वो क्या है? सेहत और फरागत। इंसान के पास जब सेहत होती है, ताकत होती है, जवानी होती है, तो उमूमन वो उसकी कदर नहीं करता। वो समझता है कि शायद ये हमेशा मेरे पास बाकी रहेगी, लेकिन हमने आमतौर पर देखा है, हम सबका तजुर्बा और मुशाहिदा है कि हमेशा इंसान सेहतमंद नहीं रहता, हमेशा जवान नहीं रहता, और हमेशा इंसान के पास फरागत नहीं होती। हमें नहीं मालूम कल का दिन हमारे लिए क्या समेटे हुए आए, उसके अंदर खैर भलाई है या इसके अलावा कुछ और। इसलिए हमें आज के इस दिन और इस दिन के भी इस वक्त से फ़ायदा उठाना है, और उसका तरीका क्या है कि हम हर लम्हा अपना जायज़ा लेते रहें कि हम अपने इस वक्त को किस तरह गुजार रहे हैं, किस काम में गुजार रहे हैं, क्या हम इससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं, और अगर चॉइस हो तो कमतर दर्जे के काम को छोड़कर ज़्यादा बेहतर काम की तरफ चले जाना चाहिए ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने से बचा सके। बाज़ रिवायात में आता है कि इमाम सुफियान सौरी एक मर्तबा हरम में बैठकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि इतने में अचानक घबरा कर उठे और कहने लगे कि हम यहाँ बातें कर रहे हैं और दिन अपना काम कर रहा है, यानी वक्त गुजरता चला जा रहा है, और क्या हम यहाँ पर बैठकर यूं ही बातचीत करते रहेंगे? हालांकि वो हरम में बैठे हुए थे, अल्लाह के घर के पास बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां बैठकर भी उन्होंने ये महसूस किया कि उनका वो वक्त कुछ ज्यादा मुफीद काम में नहीं गुजर रहा। बाज़-औक़ात हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि हम बातें ही तो कर रहे हैं, हम दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, और हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान गलत बात ना भी करे तो भी उस वक्त इंसान को ये देखना चाहिए कि इससे बेहतर काम क्या हो सकता है, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास माल होता है या कोई सरमाया होता है और हमें इन्वेस्टमेंट का, तिजारत का मौका मिलता है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है पैसा है रखा रहे, अब इसी पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। हमेशा ये सोचते हैं कि बेहतर काम में लगाया जाए, और अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम कम दर्जे के मुनाफे की बनिस्बत ज्यादा मुनाफे वाले काम में अपने माल को लगाएंगे। अगर हम अपने माल के बारे में फिक्रमंद होते हैं और माल को बेहतरीन जगह पर लगाना चाहते हैं, तो क्या हम अपने वक्त को जो माल से भी ज्यादा कीमती है ज्यादा बेहतर जगह पर न लगाएं? इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे 4 बातों के बारे में जरूर पूछेंगे। हदीस में आता है कि इंसान के कदम वहां से हिल न सकेंगे, टल न सकेंगे जब तक वो 4 बातों का जवाब न दे दे। उनमें एक तो उसके माल के बारे में कि उसने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, फिर उसके इल्म के बारे में कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया, और अपने जिस्म को किन कामों में घुलाया, और फिर खास तौर पर अन उमरिही फीमा अफनाहु, उसकी उम्र के बारे में कि उसने उम्र को किस काम में फना किया, जिस्म को कहाँ पुराना किया और उम्र को कहाँ लगाया। यानी उसकी जिंदगी की अहम तरीन चीजें जो हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। एक और रिवायत में खास तौर पर जवानी का जिक्र आता है कि जवानी को कहाँ लगाया। अमूमन हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे ऐशो इशरत के दिन है, जब बुढ़ापा होगा तो फिर देखेंगे, फिर हम कुछ इबादत कर लेंगे, हज करने को चले जाएंगे और हमारे यूं गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जवानी का वक्त जो है इसको हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में गुजारते हैं। लेकिन ये अक्लमंदी की बात नहीं। अक्लमंद वो है जो अपना सफर जल्द शुरू कर दे। हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल आखिरत है, और वहां हमें अपने रब के सामने जाकर खड़े होना है, और हमें अपनी सलाहियतों का, अपने औकात का, और जो भी नेमतें हमें मिली हैं उनके बारे में हिसाब देना है।
اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی زندگی کی قدر کرنا جانتا ہے، وہ یقینی طور پر اس مختصر سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کس طرح کریں کہ جس سے ہمارا دن بہترین اور پروڈکٹیو ہو۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جب ہم نمازوں کے اوقات کو ایک طرح سے مقرر کر لیتے ہیں تو باقی کاموں کو ان نمازوں کے بیچ کے وقفے میں ڈال کر اپنے دن بھر کا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ مثلاً صبح کا وقت سورج نکلنے تک کا فجر کی نماز سے لے کر عبادت کا وقت ہو سکتا ہے، جس میں انسان نماز کے علاوہ تلاوت قرآن، ذکر اذکار کرے۔ پھر اس کے بعد جب سورج نکل آئے اور اشراق کا وقت ہو تو اس وقت نوافل ادا کرے، پھر اپنے دن کے کام کاج میں لگ جائے۔ جو بھی کسی کا کام ہے، کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی طالب علم ہے یا کوئی تاجر ہے یا مزدور ہے، خواتین ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، تو ظہر تک کا وقت بھرپور طریقے سے خوب جان مار کر انسان کو اپنے کام میں لگانا چاہیے۔ ظہر کی نماز سے لے کر پھر عصر کی نماز تک کا وقت دوبارہ اپنے کام پہ انسان لوٹ سکتا ہے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مغرب سے عشاء اور پھر عشاء سے صبح تک کے وقت کی بھی انسان اپنے احوال کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس کی پلاننگ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا تو باقی اوقات کی پابندی بھی اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر انسان غفلت میں بھی ہے تو نماز اس کو آ کر جگاتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس کی سستی اور کاہلی کو دور کرتی ہے۔ اس کو وضو کرنے کے بعد جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چستی پیدا کر دیتی ہے۔ نیک لوگ تو صرف دن نہیں، اپنی راتوں کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد کرتے تھے۔ اس میں ہمیں ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ آرام کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ آرام ہی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یعنی اگر آج دنیا میں محنت کروں گا، اگر دنیا میں اللہ کی عبادت کروں گا تو کل آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں راحت و آرام پاؤں گا۔ لیکن اگر آج دنیا میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ کل انسان راحت پا سکے، کیونکہ آج جو بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کچھ نہ کریں، سستی اور کاہلی میں وقت گزار دیں، یا اللہ بیکار فضول قسم کی باتوں اور مشاغل میں اپنے وقت کو گزار دیں، اور پھر کل جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ہم سے پوچھے کہ عمر کس کام میں لگائی، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے سے اوقات کی منصوبہ بندی کرنا سیکھیں، نمازوں کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے روزمرہ زندگی کے ٹائم ٹیبل کو مقرر کریں اور ایک منظم طریقے سے بھرپور زندگی بسر کریں۔ صرف اپنی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پر ہی نہ جیتے رہیں، حقیقی معنوں میں محنت کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔